हेलो क्लास। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेज मेकर का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करती हूँ। चैप्टर नंबर 3 में आप लोग पेज मेकर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में सीखोगे। सबसे पहले आपका टॉपिक है क्रिएटिंग ए न्यू पब्लिकेशन। हाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू पब्लिकेशन इन पेज मेकर। व्हेन वी ओपन पेज मेकर, this is the first window which appear on your laptop screen, and in this window there are lot of components. We will discuss all these components one by one. Now we will learn how we can create a new page in PageMaker. To create a new page, we have to go on File menu, and in File menu we have to click on New. When you open New option, then there is a new window. The name is Document Setup. In Document Setup, there are lot of entries. First one is like page size, page dimension, page orientations, and margin, and page resolution, etc. We will discuss all these options one by one. And to learn all these options, we will go on laptop screen to see practical of all these options. So now discuss all these options on laptop. To create a new page, we have to go on File menu. In File menu, when you click, then first option is New. When you click on New, then there is a new window. Name is Document Setup. In Document Setup, first option is Page Size. In Page Size, when you open it, then there is a lot of option like letter, legal, tabloid, A4, A3. These are different size according to the purpose. Most common we take A4. When you click on A4 and open this, then your page appear like this. Now again we will go on other options like I will again go on the same window, and next option is page dimensions. I will again select A4. Second option is page dimension. Page dimension is page width and page height. We can if we want to change page width and height, then you can change these options like you can take 10 and 12 inches, and when we click on OK, then your page size will be changed. Next option is, again we will discuss, next option is orientation. You can take there are tall or wide. That is also same in MS Word. When you click on wide, then your screen will appear in landscape mode like this. Next option is about options. Double sided facing. Double sided and facing. Actually it is related about number of pages. First of all, we will discuss number of pages. How many pages you are going to take in your publication. Like there is one page automatically, but you can change the number, like I will do it 3. And when you click on OK, then see in the bottom. In bottom there are 3 pages, left, right, and again there is 1, 2, 3. There are 3 pages. When you click this is first page. When you click on 2, then second and third page will appear on your screen. And again when you go on 1, then we will go back on first page. So I will again we are talking about double sided and facing. Double sided means like when we click on 2, then both second and third page are open. Same meaning is facing. It is related to about printout also. We are going to take printout. We are going either we are want to take printout on one side or on both side or both pages. Next option is about margin. First of all, I will tell you about margin. There are 4 margin. This is inside margin, outer margin. It is top margin, bottom margin. We will discuss one by one. Suppose I will change inside margin like 1. I will do it 3. Then see the change in this portion. You see the change inside margin going to increase. Similarly, we can change other margin like I will go again. Suppose I am going to
bottom margin. I am going to change bottom margin. It is I make it 2 and see the change in bottom margin. Like this you can change your inside, outside, top and bottom margin. Now we will discuss other options. Other options are like target output resolution, that is 300 dpi. dpi means dot per inch. डॉट पर इंच का मतलब क्या है, आपका प्रिंटर की रिजोल्यूशन मीन्स क्लैरिटी। जब हम पेज का प्रिंट आउट लेंगे प्रिंटर से, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है 300, और इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन है 600, 1200, 1270। आप जितनी वैल्यू को इंक्रीज करो, सपोज करो आप 300 से 600 करते हो या 1200 करते हो, इसका मतलब है आपके डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच के एरिया में, उस एरिया में कितने डॉट है, जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतनी ही आपकी स्क्रीन की क्लैरिटी ज़्यादा हाई रहेगी। तो ये आपकी पेज की जब आपकी आउटपुट आएगी प्रिंटर से, उसकी क्लैरिटी से रिलेटेड है कि आपकी जो प्रिंट आउट है वो आपकी आउटपुट है वो कितनी ज़्यादा साफ होगी, कितनी हाई रिजोल्यूशन होगी। नेक्स्ट आपका कंपोज टू प्रिंटर। कंपोज टू प्रिंटर जैसे आपके लैपटॉप से सपोज करो कई सारे प्रिंटर अटैच हैं, तो यहाँ पे उन सब की लिस्ट होगी। जिस भी प्रिंटर को आप अपना आउटपुट प्रिंट करवाना चाहते हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और लास्ट में आप ये सारे ऑप्शन जब आप सिलेक्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा रह गया रिस्टार्ट पेज नंबरिंग। अब ऑटोमेटिकली अपना पेज देखो स्टार्ट पेज 1 है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चाहती हूँ रीस्टार्ट करना चाहती हूँ, इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे 1 की जगह सपोज करो मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, और उसके बाद जैसे ही ओके करते हैं, अब देखो यहाँ पे बॉटम पे आपका पेज यहाँ पे 1 की बजाय कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से। तो ये अपना बेसिक स्क्रीन था। उसके बाद देखो जो अपनी स्क्रीन है पेज स्क्रीन है पेज मेकर की, इसमें देखो लेफ्ट साइड में आपके पास जो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम क्या है आपका टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में आपके पास बहुत सारे टूल हैं, इनको हम हर एक को अलग अलग करके यूज़, कहीं पे लाइन है, कहीं पे टेक्स्ट लिखने के लिए, कोई सिलेक्ट करने के लिए है, कोई सर्कल, सबका एक हैंड टूल है आपका, कोई सर्च के लिए बना हुआ है, तो सबका अलग अलग पर्पज़ है। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कुछ टूल अपने स्क्रीन के जो अभी विजिबल नहीं है, तो मैं बाकी टूल आपको दिखाती हूँ। नॉर्मली आपकी स्क्रीन पे देखो, अगर आपको कोई भी टूल आपको शो नहीं हो रहा तो आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना, आपने विंडो ऑप्शन में जाना है, और विंडो ऑप्शन में देखो आप यहाँ पे शो कलर्स, जैसे आप शो कलर्स पे जाओगे तो देखो कलर का पैलेट आपको नज़र आएगा। अब हमारी स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बड़ा इसलिए इधर नज़र आ रहा है, हम इसको इधर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका स्टाइल और कलर पैलेट आपको नज़र आ रहा है। सिमिलरली आप इसको दोबारा से हाइड कर सकते हो यहाँ से, और दोबारा से हम इसको कैसे लेके आएंगे, विंडो ऑप्शन में जाके आपने शो कलर, और शॉर्टकट किसका क्या है कंट्रोल जे, तो आप शो कलर्स में जाके इसको शो कर सकते हो। और ऐसे ही बॉटम पे आपका होता है कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैलेट देखो यहाँ पे भी आपका शो कंट्रोल पैलेट, तो आप जैसे ही शो कंट्रोल पैलेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंट्रोल पैलेट नजर आएगा, जो आपकी स्क्रीन के कर्सर की डायमेंशंस एक्स एंड वाई पोजीशन बता रहा है, और यहाँ से आप अपनी स्क्रीन की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अब देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पे हम लिखेंगे कैसे। अब देखो आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करके देखो आपकी स्क्रीन पे क्लिक नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे राइट करोगे, कैसे यहाँ पे कर्सर लेके आओगे, कैसे टाइपिंग करोगे। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो टूल बॉक्स में यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी, जैसे ही आप टी पे, टी मीन्स टेक्स्ट, तो जैसे आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब आप कर्सर से क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे कर्सर आ चुका है, और जैसे ही आप यहाँ पे कीबोर्ड से टाइपिंग स्टार्ट करोगे आपकी स्क्रीन पे कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। बट देखो ये कंटेंट आपका बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जो आपको विजिबल नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। तो हम इसका साइज़ कैसे इंक्रीज करते हैं, साइज़ इंक्रीज करने के लिए आपके पास आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एंड प्लस, जितना आप जितनी बार करोगे आपकी स्क्रीन उतनी ही बड़ी होती जाएगी, और कंट्रोल माइनस से आप इसको छोटा कर सकते हो। तो आप लोगों ने कंट्रोल एंड प्लस को आपने प्रेस करना है साइज़ इंक्रीज करने के लिए। इसको सिलेक्ट करके आपने, और देखो इसको मिडल में हम लेके आते हैं। अब यहाँ पे देखो दोबारा से कंट्रोल इसको सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल एंड प्लस, जितना आप कंट्रोल प्लस, अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप कंट्रोल माइनस से वापस आ सकते हो। अभी आपने कंटेंट लिख दिया अपनी स्क्रीन पे, और कंट्रोल प्लस से इसका साइज़ हमने इंक्रीज कर दिया। अभी हम बुक में नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। हमारी बुक में नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या है,
वर्किंग विथ टेक्स्ट। वर्किंग विथ टेक्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने टेक्स्ट टूल में आपने टेक्स्ट टूल को लेके आना है टूल बॉक्स से, और उसको आपने जैसे स्क्रीन पे लेके आओगे तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो। और आपने साइज बढ़ाने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, कंट्रोल एंड प्लस, कंट्रोल प्लस को आप प्रेस करके साइज को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखो आपकी बुक में क्या है, प्लेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, प्लेसिंग द टेक्स्ट और इंपोर्ट। अब देखो टेक्स्ट एक तो क्या है, एक टेक्स्ट तो आपने देखो खुद टाइप किया यहाँ पे स्क्रीन पे, ये हमने खुद टाइप कर रहे हैं, जैसे देखो कर्सर से हम यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं। दूसरा, अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, हमारे पास ऑलरेडी ही हमारे कंप्यूटर में फाइल सेव है, उसको हम कैसे ओपन, मतलब उस कंटेंट को हम कैसे लेके आएंगे। अब देखो उसको लेके आने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाना है दोबारा, और फाइल मेन्यू में आपने जाना है प्लेस ऑप्शन पे। जैसे ही आप प्लेस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपने, अब मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे बना के रखी हुई है, उस फाइल को मैं ढूंढ रही हूँ, फाइल का नाम है हाँ PABC के नाम से मैंने सेव की हुई है, देखो। और यहाँ पे आपको एक और बात पता चल रही है, जो आपकी पेज मेकर की फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, PMD। ये आपने याद रखनी, जैसे आपने पावर पॉइंट एक्सटेंशन क्या होती है अपनी, PPT होती है, MS वर्ड की DOC होती है, ऐसी पेज मेकर की एक्सटेंशन है PMD, मतलब पेज मेकर। एंड यहाँ पे देखो आपने साथ में फाइल की टाइप भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, या तो आप यहाँ पे ऑल फाइल या फिर आप पेज मेकर फाइल ले सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने ये नई विंडो आ जाएगी, और नई विंडो में आपने जैसे ही सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है। अब देखो जैसे ही ओपन किया, यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं कर्सर, देखो कर्सर के साथ आपको है ना कुछ नजर आ रहा है। अब इस कर्सर को मैं देखो यहाँ खाली जगह पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो जो मेरा उस फाइल में टेक्स्ट पड़ा था वो अपीयर होने लग गया, ठीक है। इस तरह से आपको उस फाइल के कंटेंट, वो फाइल आपकी, अब टू टाइप से आप, एक तो आपने टाइप किया, दूसरा आप इसको टेक्स्ट को किसी फाइल से इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये आप किसी नई फाइल में भी ओपन कर सकते हो, जैसे मैं एक नई फाइल ओपन करती हूँ अपनी, और नई फाइल में आप ओपन करके दोबारा से उसको इंपोर्ट करते हैं। कैसे करना, आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपने प्लेस, और जैसी प्लेस नाम से एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने लुक इन में जाके आप लोगों को फाइल का नाम सर्च करना है। नाम सर्च, जैसे हमारी फाइल का क्या नाम था, PABC, तो ऐसे ही आपने, और साथ में मैंने क्या किया, नीचे फाइल का नाम बताने के साथ साथ फाइल की टाइप आपको बतानी है, या तो आप ऑल टाइप या फिर आप पेज मेकर फाइल, कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे आप ओपन करोगे तो ये आपके सामने, इसके बाद आपने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके, और जैसे ही ओके करोगे तो आपके कर्सर के साथ देखो कुछ कंटेंट नज़र आ रहे, जैसे आप इसको जहाँ पे भी क्लिक करोगे ये कंटेंट वहीं पे विजिबल हो जाएंगे। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया है इंपोर्ट करना, अब इंपोर्ट हो गया। अब इसका साइज़ भी छोटा है, इसको हमने दोबारा से, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था साइज़ कैसे बड़ा करेंगे। इसको सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल प्लस से आप इसका साइज़ कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये अपना फाइल ओपन होगी हमारी, ठीक है। ये अपना प्लेस इंपोर्ट हो गया, प्लेसिंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपकी बुक में, वर्किंग विथ टेक्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट ऑप्शन आपका 3.4 सेक्शन में क्या है, वर्किंग विथ टेक्स्ट ब्लॉक। तो टेक्स्ट ब्लॉक मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि टेक्स्ट के यहाँ पे है ना, हम पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो एक ब्लॉक की फॉर्म में होता है, और उसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको, इसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंटर टूल पे आपने क्लिक करना है। अब देखो अभी तक तो हमने टूल बॉक्स में टेक्स्ट टूल सीखा, अब हम पॉइंटर टूल के बारे में सीखते हैं। जैसे ही आप पॉइंटर टूल पे क्लिक करोगे, पॉइंटर टूल के बाद वापस आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके देखो कंटेंट के साथ है ना, आपका कंटेंट का एक ब्लॉक बन जाएगा, एक सेक्शन बन जाएगा। और देखो इसके साथ आप लोगों को हैंडल नज़र आ रहे हैं, इन हैंडल को आप कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो। जैसे मैं ऊपर लेके जाना चाहती हूँ कंटेंट को, और या इसको ऐसे भी इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐसे, जैसे एक पिक को आप, एक इमेज को आप कहीं पे भी मूव करते हो, ऐसे इसको भी आप कहीं पे भी अपनी स्क्रीन पे मूव कर सकते हो। तो आपको दो हैंडल नज़र आ रहे हैं, हैंडल की हेल्प से भी आप ड्रैग कर सकते हो। जैसे लाइक ऐसे मैं ड्रैग कर रही हूँ, सॉरी इसको करते हैं ड्रैग। हाँ एक और बात, जैसे अब आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक रेड कलर का, देखो नीचे वाले हैंडल में एक रेड कलर का एरो नज़र आ रहा है। इसका क्या मीनिंग, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट है जो हाइड है, तो आप इसको जैसे नीचे ड्रैग करोगे तो आपको अपना टेक्स्ट नज़र आने लगेगा, ठीक है। अब इसको है ना हम अपना ये एक ब्लॉक बन गया, और इस ब्लॉक को
कहीं पे भी आप ऐसे मूव कर सकते हो। जैसे आप MS वर्ड में आपके पास ये ऑप्शन नहीं था, उसमें आपको क्या करना पड़ता था, पूरा का पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ता था, उसके बाद कट या कॉपी करके आप दूसरी जगह पेस्ट करते थे। यहाँ पे आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको एज ए ब्लॉक सेलेक्ट करके कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो। पैराग्राफ को आप ऊपर नीचे भी सफल कर सकते हो। अब और ऑप्शन देखते हैं आपकी बुक में, और क्या ऑप्शन है, मूविंग द टेक्स्ट ब्लॉक। अब मूव करना आप लोगों ने सीख लिया है। हैंडल के बारे में देखो, हमने दो हैंडल, एक आपका टॉप हैंडल है, बॉटम हैंडल है, और ये आपका बीच में टेक्स्ट ब्लॉक है, और साथ में देखो कॉर्नर्स पे भी आपको हैंडल नजर आ रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पे भी आपको हैंडल नजर आ रहे हैं, इसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपकी बुक में क्या है, रीसाइज द टेक्स्ट ब्लॉक। अब इसका रीसाइज कैसे करेंगे अपने टेक्स्ट ब्लॉक को। अब देखो उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही आप अपने कर्सर को स्क्रीन में इस ब्लॉक में राइट साइड पे, राइट हैंडल पे, राइट बॉटम हैंडल पे लेके जाओगे, जो आपका कर्सर है वो क्या हो जाएगा, ट्विन हेडेड एरो बन जाएगा। और इस ट्विन हेडेड एरो को आप कहीं पे भी लेफ्ट में या और ज़्यादा राइट में कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, ड्रैग करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम देखो, अब मैं भी ऐसे ही करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे हम यहाँ पे लेके गए अपने कर्सर को, ठीक है, हम यहाँ पे लेके गए, देखो ट्विन हेडेड एरो बन चुका है अपना कर्सर, और इसको ऐसे ऐसे करके मैं लेफ्ट में मूव करती जा रही हूँ, और ऐसे अब इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी है। लेकिन देखो अभी आपका टेक्स्ट कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा है। देखो, और एक और मैं बात बताना चाहती थी। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोबारा से एक रेड कलर का एरो आ गया हैंडल के अंदर। अब हैंडल के अंदर एरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ टेक्स्ट अपना नीचे की तरफ हाइड हो चुका है, मतलब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट हाइड है। और इसको हम जैसे ही एरो को ड्रैग करेंगे, इसको देखते हैं दोबारा से, Ctrl+Z कर देती हूँ, एक सेकेंड, ये ना आपका 2 बार कॉपी पेस्ट हो चुका है। इसको है ना, देखो मैं बताना चाहती थी, अब जैसे इसको ड्रैग किया आप लोगों ने तो आपको कंप्लीट टेक्स्ट अपना नज़र आने लग गया। देखो इसको और दोबारा से आप ऐसे ही किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको जैसे ही मैं बता रही थी, जैसे इसको बहुत छोटा कर दिया आप लोगों ने, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। रेड कलर का मतलब है आपका कुछ टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, और इसको आप ड्रैग करके बाकी का रिमेनिंग टेक्स्ट आप कभी भी शो कर सकते हो। और हम इसमें हैंडल के बारे में कुछ आपकी बुक में हैंडल्स कई टाइप के दिखाए हुए हैं, अलग अलग टाइप के हैंडल है। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका बताया हैंडल आपका एम्प्टी है। एम्प्टी हैंडल का मतलब तो क्या है, देखो यहाँ पे हैंडल एम्प्टी है, इसका मतलब इसके अंदर और इसके ऊपर भी कोई टेक्स्ट नहीं है, इसके नीचे भी कोई टेक्स्ट, मतलब कोई भी टेक्स्ट अनहाइड नहीं है, जितना भी टेक्स्ट है वो आपको विजिबल है। लेकिन अगर आपका देखो टॉप हैंडल में अगर प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि टेक्स्ट ब्लॉक हैज ए प्रीडिसेसर। ये टेक्स्ट ब्लॉक है, इससे पहले कोई प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब कुछ टेक्स्ट ऊपर का, कुछ टेक्स्ट इसका अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है हैंडल में, इसका मतलब है ऊपर कुछ टेक्स्ट हाइड हो चुका है। और इस हैंडल को हम ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करके, ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करके उस टेक्स्ट को देख सकते थे। ठीक है, ऐसे ही अगर हैंडल ब्लैंक है नीचे वाला, इसका मतलब इसके कोई भी सक्सेसर नहीं, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी और नीचे टेक्स्ट नहीं बचा हुआ, जितना है वो कंप्लीट आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर नीचे वाले हैंडल में प्लस का साइन, इसका मतलब कुछ टेक्स्ट आपका हाइड है, मतलब इट इंडिकेट दैट टेक्स्ट ब्लॉक हैज ए सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब इसके बाद भी कुछ टेक्स्ट बचा हुआ है। और अगर एरो है, इसका मतलब क्या बता रहा है, इट कंटेन ए एरो और ट्रायंगल, इट इंडिकेट टेक्स्ट ब्लॉक कंटेन मोर टेक्स्ट देन डिस्प्ले, इट नीड टू बी प्लेस समवेयर टू डिस्प्ले। कि अभी और भी टेक्स्ट है इसके अंदर जिसको हम अभी डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लास आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, रिवाइज करो, और आप लोग जहाँ पे भी आपको डाउट आए आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को लेक्चर बाय कॉल भी एक्सप्लेन करूँगी ये सब। ओके क्लास, थैंक यू।